country in the world where the virus is exponentially rising, and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. What India is facing now in front of us is the result of a failed lockdown. Now, what we in the Congress party and a lot of people want to understand, and we do not want to do it harshly, aggressively, but we want to understand what the government's view is going forward. We want to understand what is their strategy. It is pretty clear that 4 stages of lockdown have not produced the result that the Prime Minister expected. Prime Minister and his entire advisory staff, including his top medical people, said that the disease would start to reduce towards the end of May. It's clear that the disease is not reducing, it is increasing. So we, with utmost respect, want to ask the Prime Minister and the government, now that we have a failed lockdown, what is their strategy going forward? What is their strategy as far as opening up India is concerned? What are the precautions that they're going to take to now curb this disease? How are they thinking about supporting our migrants? How are they thinking about supporting the state governments? How are they thinking about supporting small and medium businesses? We had great expectations. There was multiple press conferences about the package. Prime Minister said 10% of GDP. The reality is we have less than 1% of GDP being given, most of it in loans, hardly any cash giving to people. Congress party is running some states. We are giving cash to people. Directly, we are giving cash to farmers. We are giving cash to laborers. But we are not getting any support from the central government. And it is becoming extremely difficult for our states to function without adequate support from the central government. थोड़ा मैं हिंदी में बोल देता हूं. नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी. 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए. हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है. चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी. तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है. जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है. बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है. आपकी स्ट्रेटजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं. ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं. मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा. 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है. आई डोंट वांट टू गो इनटू व्हाई द गवर्नमेंट इज फेल्ड, दैट इज इन द पास्ट. I don't want to sort of go into details about what could have been done, how it could have been done, who should have done it. I'm not interested. I am interested in right now. I am interested in what India is facing right now.
And what we are facing right now is a failed lockdown, because the goal of the lockdown, as stated by the Prime Minister on national television, was that we will defeat the disease in 21 days. These are not my words, these are the words of the Prime Minister. Now, it is one lockdown, two lockdown, three lockdown, we're coming to the end of the fourth lockdown, and the disease profile is not reducing. So I'm just stating a simple fact that what we expected from the lockdown has not occurred. Disease profile is shooting up. In number of states, it is shooting up. What is the government thinking of doing going forward? The Congress party is in power in 3 or 4 states. We know what we are planning. We are very clear what has to be done in our states. We are giving money to poor people. We are giving food to poor people. We are managing the migrants. We are increasing our testing. We have a strategy. But states cannot function in a strategy without the national government. States are hamstrung if the national government is not behind states. So I have spoken to our chief ministers who have asked me to mention this. They have said that they are fighting a lonely battle and they are confident. They understand what has to be done. But what is the central government planning to do? That's the main question here. And that's again, we of course have a view. We put that view down. We said that injection of money is required. Aggressive movement on that front is required, but we were disappointed. But once again, I want to state, I do not want to get into the past that this is what the government did wrong, that's what they did wrong, no. I am interested in how we're going to deal with this problem going forward. I don't think it is either health or economics. I think we are smart enough, intelligent enough to work a path through that will create a successful compromise between health and economics. So I don't see this as a on-off switch where you either solve the health problem or you solve the economics problem. I think there is a lot of nuance to that. However, India has been facing a very serious unemployment problem, and this is not new. This has been going on. You've heard of Make in India, you've heard of some of those initiatives, and they have not given the result that one expected for whatever reason. However, now there is a new element to this unemployment, which is that we were already struggling, and now suddenly we've hit this corona problem, which has multiplied this unemployment problem. As you can see, businesses were shut down. And I'm sorry to say this as a national leader, but many small and medium businesses are going to go bankrupt. The people who work for those businesses are going to become unemployed. And that is why we are raising again and again and again that an injection of capital and injection of money to small and medium businesses is required. It will be fatal if we do not do it. An injection of money to the poorest 50% of India is required. It will be fatal if we do not do it. So yes, there is an unemployment problem, but that unemployment problem has now been compounded massively by the current crisis. And no, I do not think it is a choice between healthcare and economics. I think we are intelligent enough to work out a solution that looks after both. देखिए, जो border issue है, इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी फ्रैंकली किसी को नहीं है. नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए. वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे. जो
चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, और वो देश को नहीं मालूम। जी सर, धन्यवाद। हम सर मूव करते हैं टेलीविजन की तरफ। इसमें सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जी सर, जब तक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मुझे इस पे टिप्पणी करना या बोलना सही नहीं होगा। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो फिर मैं आपको एक क्लियर कट पोजीशन दे सकूंगा। देखिए, सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है। हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है, और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं। मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं। और फरवरी मैं जो कहा था, उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था, वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनडायरेक्टली होती रहती है। उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है। हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है। हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। आई हैव बीन स्पीकिंग टू क्वाइट अ फ्यू डेली वेज वर्कर्स, quite a few migrants. I've been having Zoom calls. I've been physically meeting them with all the social distancing norms. And they have a sense of hopelessness. They have a sense that they have been left alone. Many of them have said to me, भरोसा हमारा टूट गया, भरोसा हमारा टूट गया. I don't like hearing those words. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words.
I don't want a single Indian person to say those words. मगर जो हमारे क्रिटिकल सजेशंस है, मेन नंबर 1 सजेशन, अर्थव्यवस्था को बचाना है, पैसा एकदम दो, वो सजेशन उन्होंने नहीं लिया, उससे थोड़ा हमें दुख हुआ है। बट वो उनका प्रोरोगेटिव है, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा नहीं दिया गरीबों को, न्याय योजना जैसी योजना नहीं दी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। ये तो मैं आपको लिख के दे दूंगा। नहीं, देखिए, मेरा लक्ष्य इसमें एक ही है, मैं गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं। और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है। अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है। मैं, अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। अगर दे दें, मैं चला जाऊंगा, एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा मैं। मगर मेरा लक्ष्य, मेन लक्ष्य जो उनके दिल में है, वो हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का है। मैंने ये जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुनें। काफी बड़ा इंपैक्ट होता है अगर व्यक्ति इस बात को सुने, क्योंकि ये लोग हमारी शक्ति हैं, ये लोग हमारे भविष्य हैं। और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर किसकी मदद करेंगे? वो फाइनेंस मिनिस्टर की व्यू है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है। ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, वो आपको जब चुनाव होगा वहां पे पता लग जाएगा। मगर एक स्पिरिट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए, डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है, उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। अगर बीजेपी हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में हमें कोई सजेशन देना चाहती है, हम उसको सुनेंगे। अगर वो वैलिड सजेशन है, हम शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। मगर वहां से लेकर आप प्रेसिडेंट्स रूम में जंप मार दें, वो अलग बात है। कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ, 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है।